Okay, let me ask you the question. Can anybody explain me the architecture of Power BI? Anyone? What are the different components in Power BI? What is the use of each component? Anybody? Whatever you know, you can tell. एक ही दिन हुआ है, so I'm not expecting a perfect answer, but still you should try at least. पावर बीआई जी डाटा विजुअलाइजेशन और इंटेलिजेंट टूल डेवलप के लिए होता है ना। Hmm. Hey, I'm तो not asking what is the use of Power BI. I'm asking what is the architecture of Power BI. या फिर what are the different components in Power BI and what is the use of each component. Okay, we have discussed in the last session, no? The same thing I am asking. In Power BI, basically we have two components. One is Power BI Desktop and another is Power BI Service. Okay, Power In BI Power BI, in Power BI Desktop, desktop. we have three modules. One is Power Okay, Query, and second is Power Pivot, and third is Power View. okay. Power Query, Power Pivot, and Power View. Power View. What is the use of Power Query? The major work of Power Query is to pull the data from Retrieve different ट्रांसफर data data. टूल्स sources. ना, Mm-hmm. Pull the ट्रांसफर data from different sources डाटा टूल। and do the required cleaning. Okay, so majorly it is an ETL tool inside Power BI, which is used to extract the data, transform the data, and load the data. लोड दो डाटा। Yeah, so basically we are doing data cleaning or data shaping. Okay. ओके sure। In Power Pivot, what is the major use of Power Pivot? डाटा मॉडलिंग। डैक्स है ना, Data डैक्स modeling. Data Data enhancement. डाटा modeling. एनालिसिस एक्सप्रेशन। Right. Data modeling का ही दूसरा नाम क्या है? Data Dimensional enhancement. modeling. हाँ, डायमेंशनल Modeling. मॉडलिंग। डायमेंशनल। Dimensional modeling. So in Power Pivot, we will do two things. One is data modeling और दूसरा वाला क्या है? डेटा क्यूरी। Sorry? Data पावर व्यू। enhancement. Data enhancements. Okay. Data enhancements में क्या करते हैं हम लोग? वहाँ पे न्यू कैलकुलेशंस न्यू Calculation. कैलकुलेशन करते हैं जो डैक्स हाँ, यूज करके। हाँ, we create new calculations based on Dash. available information. जी सर। मतलब जो इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है उसको यूज करके नया नया कैलकुलेशन बनाते हैं, राइट? यस सर। जी सर। उसके लिए व्हाट इज द लैंग्वेज वी आर गोइंग टू यूज? DAX. डैक्स। Is the full form of डाटा DAX? एनालिसिस डाटा Data एनालिसिस एक्सप्रेशन। analysis डाटा expression. एनालिसिस एक्सप्रेशन। Okay. So this is what we do it in PowerPoint. Data modeling मतलब क्या है? अरेंज द डाटा लाइक सिक्वली। Creating relationships between fact and dimension tables. What is fact table? What is डायमेंशन। dimension table? We will come back later. Okay. ओके। What is the use of Power View? Create visual. विजुअल्स जो हम Okay. किए हैं वो दिखाएंगे। हाँ, राइट। तो इन तीनों कंपोनेंट्स में जो हम जी सर। बनाते हैं इसको क्या बोलते हैं? मतलब बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर डूइंग द रिपोर्ट डेवलपमेंट। ओके। पावर बाई डेस्कटॉप में क्या होता है? रिपोर्ट रिपोर्ट डेवलप। डेवलपमेंट। राइट, यहाँ तक हम लोग जो भी करते हैं दैट इज कॉल्ड रिपोर्ट डेवलपमेंट। एक बार रिपोर्ट डेवलप होने के बाद देन व्हाट वी विल डू, वी विल यूज द पावर BI सर्विस। सो पावर BI सर्विस में क्या क्या करते हैं हम लोग? सिक्योरिटी पुट पब्लिश। करके पहले क्या करते हैं, जो रिपोर्ट हमने यहाँ पे डेवलप किया उसको पब्लिश करते हैं। यस। Yes. उसके बाद क्या करते हैं? Automate the report. सिक्योरिटी सप्लाई करते हैं। सिक्योरिटीज डालते हैं। जी सर। सिक्योरिटी सप्लाई करने के बाद उसको ऑटोमेट करते Automate the हैं data. रिपोर्ट को जैसे कि वो। ऑटोमेट करते हैं। Automate the जी। report. उसके बाद क्या करते हैं? शेयर द रिपोर्ट करते हैं, वो रिपोर्ट को शेयर करते हैं वो जो हमारे क्लाइंट होता है उनको।
राइट ओके यूजर वो को हाँ जो रिपोर्ट एंड यूजर को शेयर करते हैं। हाँ होने के बाद क्या करते हैं उस रिपोर्ट को एंड यूजर के साथ शेयर करते हैं शेयर करते हैं। ठीक है दिस एंटायर थिंग यू नीड टू एक्सप्लेन इन 1 minute और लेस देन 1 minute ठीक है जी सर। द सेम क्वेश्चन आई विल आस्क अगेन इन आवर नेक्स्ट सेशन ओके सर पहले क्या आप बोले वो जो पावर बीआई में क्या होता है, दो कंपोनेंट होता है, एक होता है पावर बीआई डेस्कटॉप और दूसरा होता है पावर बीआई सर्विस। करेक्ट और पावर बीआई डेस्कटॉप में वो जो तीन होते हैं जैसे कि पावर बीआई क्वेरी और पावर पाइवट और पावर व्यू, उनको क्या बोलते हैं? सेम रिपोर्ट इनसाइड डेवलपमेंट। पावर बीआई डेस्कटॉप अगेन वी हैव 3 more components या फिर 3 more जी मॉड्यूल्स कुछ भी बोल जी सकते सर। हो जी सर। एंड देन यू नीड टू एक्सप्लेन ईच मॉड्यूल का इंपॉर्टेंस क्या है जी सर। ठीक है जी सर। एवरीबॉडी क्लियर ऑन दिस यस सर। यस सर। ओके दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू मतलब इससे कोई डिसाइड नहीं करेगा आपको आता है नहीं आता है बट इससे ये डिसाइड कर सकता है कि आपको पता है कि नहीं पता है जी सर। ठीक है राइट जी जस्ट सर। टू मतलब इंटरव्यू में क्या होता है स्टार्टिंग में दे विल आस्क यू सम इजी क्वेश्चंस टू मेक यू कंफर्ट राइट सो जी सर। स्टार्टिंग के 1 2 3 क्वेश्चंस में दिस क्वेश्चन विल कम ठीक है राइट सो नाउ लेट्स सी Power BI desktop इंस्टॉलेशन ओके इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं आप गूगल पे जाके जस्ट टाइप करो पावर बीआई डेस्कटॉप डाउनलोड आई विल गिव यू द डायरेक्ट लिंक ठीक है उसके बाद you come to the Microsoft Power BI desktop from official Microsoft okay this was the link if somebody is trying to download now I will share the link in the माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर नहीं है क्या? स्टोर पे भी होगा but I would recommend you to do it from the official website सर मेरा तो स्टोर पर था, मैंने। चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है जी सर। ठीक है आई एम शेयरिंग इन द चैट ऑल्सो यहाँ पे भी मैं रनिंग नोट्स में भी रख रहा हूँ बाद में आप यू कैन यूज इट ओके देन यू कम डाउन यहाँ पे लैंग्वेज शुड बी इंग्लिश ओके इसको चेंज मत करना क्लिक ऑन डाउनलोड नाउ हियर यू नीड टू सेलेक्ट 64 बिट या फिर 32 बिट दिस वन इज 64 बिट आपको 64 बिट डाउनलोड करना है यू कैन चेक हियर ऑल्सो आप अपने पीसी में आके यू कैन गो टू दिस पीसी और यहाँ पे आप राइट क्लिक करके डू ए राइट क्लिक ओके व्हाट आई एम डूइंग आई एम शोइंग यू ओके आपका लैपटॉप के अंदर प्रोफाइल प्रॉपर्टीज आपको चेक करना है क्लिक ऑन दिस पीसी डू ए राइट क्लिक गो टू प्रॉपर्टीज यहाँ पे आपको दिखेगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कितना बिट का है 64। यस। यस okay मैम। यस सर। it will be 64 bit only but still you can check ठीक है यस सर। राइट उसके बाद आपको you need to click on this 64 bit one and then click on download so this will not take much time okay so now it got downloaded you go to the downloads okay यहाँ पे you will see this one do a right click run as administrator या फिर डबल क्लिक करने से भी हो जाएगा बट आई वुड रिकमेंड क्लिक ऑन रन एज एडमिनिस्ट्रेटर okay don't change the language keep it is English only then click on next okay then again click on next I agree terms in the license agreement इसको checkbox को you need to click this one and then click on next this location you should not change okay this location should be as it is
Clear? Yes, no? Yes. Yes, Yes, sir. sir. Okay, keep the location as it is and then click on next. Create a desktop shortcut. इसको check कर लेना. If you check this one, आपका desktop के ऊपर you will get that icon. अगर check नहीं करते हो वो icon नहीं आएगा. I would recommend to keep this checked. Okay, इसको ऐसे ही रहने दो and then click on install. I am not doing again because मेरे पास already है. If you click on install and finish, आपका desktop में this will be installed. Power BI desktop will be installed. Clear? Yes, sir. Yes, sir. ओके, इट्स अ वेरी सिंपल वन. बस आपको कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, बस नेक्स्ट नेक्स्ट एग्री टर्म्स एंड कंडीशन इंस्टॉल फिनिश, बस उतना ही करना है. ठीक है? Yes, sir. Want to cancel? Yes, I want to cancel. ठीक है, तो आपका इंस्टॉल होने के बाद देन you can come to your start button. ओके, यहाँ पे चेक ये आ जाएगा. ओके, इफ इट इज नॉट कमिंग हियर, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे स्टार्ट बटन सर्च पे कर क्लिक सो करके, सर्च मार के हाँ, यू कैन सर्च हियर, सर्च फॉर पावर बीआई डेस्कटॉप. जब आप सर्च करोगे यू विल गेट दैट ऐप. ठीक है, इसको आप राइट क्लिक करके यू कैन से पिन टू टास्क बार कर सकते हो. पिन टू टास्क बार करने से क्या होगा, यहाँ पे आपका वो एक आइकॉन आ जाएगा नीचे, so that every time you can open it from here. These are just I am giving you an options. ये सब करने की जरूरत नहीं है. If you want to open it from here always, you can do that one. आपका मोस्टली आपका डेस्कटॉप पे शॉर्टकट आ जाएगा. You just need to come here and double click on the application. Is that clear? यस सर. Right. So once you open it, it will look like this. Okay. आप जब Yes, पावर sir. पे डेस्कटॉप को ओपन करोगे, it will look like this. You just click on the blank report. ठीक है? We will click on the blank report and this will come like this. यहाँ पे मैंने मेरे नाम से लॉगिन किया है, बट लॉगिन करने की जरूरत नहीं है अभी के लिए. ओके, आई विल क्लिक ऑन साउंड आउट. आपका ऑफिशियल आईडी है तो आप लॉगिन कर सकते हो, बट इट इज नॉट रिक्वायर्ड एज ऑफ नाउ. मैं बताऊंगा कब चाहिए होगा, आई विल टेल यू. ठीक है? Yes, sir. Okay, as of now, just open Power BI desktop, click on blank report, it will look like this. अगर वो साइन इन के लिए पूछता है, just close that window. साइन इन करने की जरूरत नहीं है. Right? Yes, sir. Right. Now what you need to understand here is, see if it is looking like this, यहाँ पे right corner में you have this switch ribbons करके है ना, just click on that one ताकि आपको सारे options दिखे यहाँ पे. Yes, sir. Right. So that is about the installation part. Okay. Installation करने Yes, के sir. बाद let's try to understand the Power BI interface. मतलब किसको क्या बोलते हैं, let's try to understand. Okay. Yes, no? यस सर. Right. So ये जो ऊपर है ना, this one, this part is called as, this entire part is called as ribbon menu. Okay, इसको क्या बोलते हैं? रिबन मेनू. टॉप में जो है इसको क्या बोलते Ribbon हैं? menu. रिबन. Ribbon menu. राइट. उसके बाद एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में जो है, मतलब जो विजुअलाइजेशन वगैरह लिखा है. नहीं वो नहीं, एक सेकेंड. जो डेटा लिखा है ना यहाँ पे, हाँ हाँ हाँ. ओके, दिस इज कॉल्ड एज डेटा पेन. ओके, ये वाला जो है दिस इज कॉल्ड एज डेटा पेन. ये पूरा Yes, sir. Data main. आई विल राइट ऐसा हियर. पिन. हाँ, इसको क्या बोलते हैं? Okay, okay. डेटा पेन.
यस सर। ठीक है। नेक्स्ट टू डेटा पेन, जो नेक्स्ट टू डेटा पेन, इसको क्या बोलते हैं? विजुअलाइजेशन पेन। यस सर। ओके, ये वाला जो है हमारा, this part. ओके सर। Okay, this part is called as visualization विजुअलाइजेशन। pane. ठीक है। उसके नेक्स्ट जिसको है, इसको क्या बोलते हैं? फिल्टर पेन। फिल्टर पेन। ओके, इसको क्या बोलते हैं? नेक्स्ट टू फिल्टर पेन। visualization pane, we have something called filters pane. ठीक है। Yes, sir. ओके, तो इसको क्या बोलते हैं? फिल्टर्स पेन। उसके बाद ये जो बीच का है, जो व्हाइट बैकग्राउंड जो यहाँ पे आ रहा है, ऐड डेटा टू योर रिपोर्ट जो आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज रिपोर्ट कैनवस। ओके, मिडिल पार्ट, इसको क्या बोलते हैं? वीडियो कन्वर्टर। रिपोर्ट कैनवस। यस सर। ओके, कैनवस भी बोलते हैं, रिपोर्ट कैनवस भी बोलते हैं। राइट, उसके बाद एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड में दिस, ओके, एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड में वी हैव सम व्यूज। रिपोर्ट व्यूज ना। नहीं नहीं, व्यूज है, बस उसको व्यूज बोलते हैं। वो कौन ओके। से व्यूज होते हैं? पहला वाला है रिपोर्ट व्यू, सेकंड वाला है टेबल व्यू, थर्ड वन इज मॉडल मॉडल व्यू। व्यू, एंड द फोर्थ वन इज डैक्स क्वेरी DAX व्यू। query view. Out of these four, these three are important. DAX query view is something recently came up. Okay, इसका use क्या है? I will tell you. बाद में जब DAX में जाएंगे, at the time I will tell you. But these three views are important. Okay, any questions? सर और एक है ना TMDL व्यू, वो क्या है? कौन सा? TMDL व्यू कुछ तो लिखा है। Maybe in the latest one they might have added, but वो preview में होगा. Okay. हाँ हाँ। You can skip that one. Majorly, these three are important. This one, what is the use of this one? I will tell you. Okay, बाद में जब हम DAX में जाएंगे, we will tell you. I will tell you. But as of now, these three are very important. ठीक है? अरे मेरे इसमें 5 है ना, इसलिए मैं पूछता हाँ, मैं समझ गया. It is there. I हूँ। have also seen that one, but that is not Yeah. required. As of now, you skip it. Okay. Okay, right. So these are the different views available in Power BI. उसके बाद नीचे we have, this is called page navigation. Okay, matlab we can navigate from page 1 to page 2, page 2 to page 3, page 3 to page 4. So you can add multiple pages at the bottom. जैसे Excel में हम add करते हैं multiple sheets, you can add multiple pages in this Power BI report also. Okay. Bottom में we have Page navigation. navigation. Okay. Clear? Sir. यस सर। So now you should be in a position, अगर मैं बोलता हूँ, for example, we are online, okay, you are sharing the screen. If I ask you, can you please expand the visualization pane? So you should immediately go here and expand this one. If I ask you, can you expand the filters pane?
you should be in a position to come here and expand it. If I say, can you please collapse the filters pane? You should be able to collapse it. Collapse the visualization, collapse it. Can you add a new page in the report? So you will come here and add it. Can you rename the page? So you can double click here Right. and then you can rename. सर राइट क्लिक करके भी रीनेम कर सकते हैं. हाँ, see there will be Okay. options यहाँ पे rename करके है, डबल क्लिक करने से है, we have options, okay? Right. So if I ask, can you go to the view tab in ribbon menu? ओके, रिबन मतलब क्या, ये ऊपर का. व्यू टैब मतलब ऊपर क्या, का. दिस इज द व्यू टैब. यस और नो? Yes. Yes sir. Oh, can you go to the home tab in ribbon menu? That means this one. Can you go to the table view? मतलब this one. Can you go to the report view? मतलब this one. Can you click on the report canvas? This one. So मतलब with the words itself, verbally, if somebody asks you something here, you should be able to understand. That is the idea. Any questions? No, sir. ओके, इफ उसके बाद एक और चीज है, लेट मी एक्सप्लेन दैट वन आल्सो. इफ सपोज आई विल आस्क यू, कैन यू गो टू द पावर क्वेरी? ओके, पावर क्वेरी मतलब इन द होम टैब, रिबन में होम टैब में ट्रांसफॉर्म डेटा में, अगेन इफ यू क्लिक ऑन ट्रांसफॉर्म डेटा, इट विल टेक अस टू पावर क्वेरी एडिटर. Okay sir. ओके, इफ आई आस्क यू, Okay. कैन यू प्लीज गो बैक टू रिपोर्ट व्यू, मतलब you need to come here and click on close and apply या close जो भी है. I will tell you when to use what. Generally we will use close and apply. If you close and apply, you will come back to report view again. Okay. Yes sir. So we have three components, right? क्या क्या है? Power view है, power pivot है and Query. power query है. Okay, so you should be able to go to each and every place. If I say, can you go to power query? आपको होम में जाना है, ट्रांसफॉर्म में जाना Data है, data ट्रांसफॉर्म में आता. जाना है, डेटा ट्रांसफॉर्म में Okay. जाके पावर क्वेरी. इफ आई आस्क यू, Okay. कैन यू गो बैक टू रिपोर्ट व्यू एंड पावर व्यू बोथ आर सेम. Okay. ठीक, report view, power view, both are same. So you just need to come here, click on close and apply, you will go to the report view. Report view or power view, both are same. If I ask you, can you go to the power pivot and model view, both are same. ठीक है? Yes, sir. ओके, सो थ्री कंपोनेंट्स क्या क्या है? मॉडल व्यू का मतलब जो पावर पिवोट है, दिस इज द मॉडल व्यू और पावर पिवोट. इफ आई से रिपोर्ट व्यू और पावर व्यू, यू नीड टू कम हियर. इफ आई से कैन यू गो टू पावर क्वेरी, यू नीड टू गो फ्रॉम हियर टू हियर. ओके, इजी टू नेविगेट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Any sir. questions? Everybody. Yes, sir. Yes, sir. Who is this admin? Can you please rename yourself? ओके, सो दैट इज द इंटरफेस ऑफ पावर बी. दैट इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और नीचे यहाँ पे डेस्कटॉप लेआउट, मोबाइल लेआउट है. आई विल कम बैक टू दिस वन लेटर. ये रिपोर्ट बनाने के बाद यूज होता है. जनरली रियल टाइम में यूज ही नहीं है. बट फॉर एग्जांपल हमने रिपोर्ट बना दिया, उसके बाद वी वांट टू शो इट, वी विल शेयर इट टू द एंड यूजर. एंड यूजर बोलेगा मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है, आई विल बी ट्रैवलिंग ऑल द टाइम, सो आई वांट टू, आई विल नॉट बी एबल टू ओपन लैपटॉप या टैबलेट, वो सब मैं ओपन नहीं कर पाऊंगा. तो मुझे जो भी रिपोर्ट देखना है मोबाइल में देखना है. सो वी विल चेंज द लेआउट. ये अभी डेस्कटॉप लेआउट में है. सो हम लोग क्या करेंगे, उससे उसको शेयर करने से पहले वी विल कन्वर्ट टू मोबाइल लेआउट, और यहाँ पे वी विल पुट दोज विजुअल्स मोबाइल लेआउट में डाल के, एंड देन वी विल शेयर इट विद देम. जनरली दिस विल नॉट हैपन इन रियल टाइम, बट वी विल सी वन एग्जांपल. Okay, या sir. या so we'll go back to desktop layout. Right, so this is all about Power BI interface. Now, okay, Power BI आर्किटेक्चर क्या है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ईच कंपोनेंट का यूज क्या है, दैट शुड बी क्लियर.
यस सर। और यस सर। पावर BI Yes, sir. डेस्कटॉप को कैसे डाउनलोड करते हैं, दैट शुड बी क्लियर। यस सर। पावर सर। BI डेस्कटॉप को ओपन करने के बाद व्हाट आर द डिफरेंट मतलब इंटरफेस क्या है, जी किसको सर। क्या बुलाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कैसे नेविगेट करते हैं, दैट शुड बी क्लियर। यस सर। Okay, so now we will go to the main topic. यहाँ से we have also seen how to सर go. पेज नेविगेट थोड़ा और बोलिए फिर से। नहीं, पेज नेविगेशन कुछ नहीं है नीचे। आप ये इसमें बोलूंगा कैन यू नेविगेट टू हाँ। पेज नंबर 1, मतलब यू विल कम टू नहीं पेज नहीं नंबर। सर, जो थोड़े टाइम से पहले बोल रहे थे पावर क्वेरी से पावर पिवट में कैसे जाएंगे, वही वाला पूछ रहा हूँ। ये थोड़ा मेरा हाँ नेटवर्क इशू से। हाँ, तो आप अभी पावर व्यू में हो, मतलब रिपोर्ट व्यू में हो। यहाँ जी से सर। आप पावर क्वेरी को कैसे जाओगे, होम टैब में जाना है, ट्रांसफॉर्म डेटा में जाना है, क्लिक ऑन ट्रांसफॉर्म डेटा, यू विल गो टू पावर क्वेरी। जी सर। ठीक है। अभी यहाँ से फिर से आई वांट टू गो बैक टू रिपोर्ट व्यू आप पावर व्यू, सो क्या करेंगे, यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है ना, क्लोज एंड अप्लाई, आई विल क्लिक ऑन यस सर। क्लोज एंड अप्लाई। जी सर। ठीक है, आप वापस आ जाओगे रिपोर्ट व्यू पे। जी सर। ओके, राइट। यस सर। राइट नाउ हम लोग पहला मॉड्यूल, लेट्स फोकस ऑन पावर व्यू। ओके, फर्स्ट वी विल वर्क ऑन द विजुअलाइजेशन पार्ट। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास क्लीन्ड डेटा है, ठीक है, क्लीनिंग करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल यू हैव रिसीव्ड ए क्लीन्ड डेटा और एक ही टेबल है, एक ही टेबल है मतलब नो नीड टू डू एनी मॉडलिंग, राइट? ऐसा ना? यस हाँ सर। सर, उसमें तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। हाँ, तो एक टेबल है तो आपको किसी के साथ कनेक्शन करने की जरूरत नहीं है, राइट? सो फॉर एग्जांपल आपके पास एक ही टेबल है, उसके अंदर क्लीन्ड डेटा है, इसका मतलब क्या है, आपका पावर क्वेरी में कुछ काम नहीं है, राइट? हाँ सर, आपका डायरेक्टली। क्लीन्ड डेटा है तो आपका पावर क्वेरी में कुछ भी काम नहीं है। और एक ही टेबल है तो आपको डेटा मॉडल बनाने की भी जरूरत नहीं है, राइट? अगर कैलकुलेशन करने हैं तो करेंगे, बिना कैलकुलेशन के भी हम लोग बहुत सारे विजुअल्स बना सकते हैं। सो वी आर फर्स्ट गोइंग टू फोकस ऑन विजुअल्स कैसे Power बनाते view. हैं, फिल्टर्स कैसे अप्लाई करते हैं, बुकमार्क्स कैसे करते हैं, बटन्स कैसे डालते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है पावर व्यू में। फर्स्ट वी विल ट्राई टू कवर ऑल दोस थिंग्स। मैं रोड मैप बता रहा हूँ व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट पावर व्यू। पावर व्यू में जो भी कर सकते हैं एवरीथिंग वी विल लर्न, देन आई विल गिव यू अ स्मॉल प्रोजेक्ट सो दैट सारे ऑप्शंस आपका क्लियर हो जाएंगे कि पावर व्यू में क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है। यस सर। Yes, उसके sir. बाद वी विल कम टू पावर क्वेरी, जहां पे वी विल सी हाउ टू डू द डेटा शेपिंग, डेटा क्लीनिंग वगैरह कैसे कैसे कर सकते हैं, दैट वी विल लर्न। ओके, वंस पावर क्वेरी लर्न मतलब क्लीनिंग पार्ट हो गया, देन पावर क्वेरी और पावर व्यू इन दोनों को मिला के एक असाइनमेंट दूंगा मैं, एक प्रोजेक्ट। तो Okay. आपको क्लीन करना है और उसके बाद विजुअल्स भी बनाना है। Yes, sir. जी सर। ओके, एंड देन वी विल लर्न अबाउट डेटा मॉडलिंग। जब मल्टीपल टेबल्स होते हैं तब हम कैसे कनेक्ट करते हैं, व्हाट आर द थिंग्स रिक्वायर्ड। ओके, मॉडलिंग करने के बाद देन वी विल कम टू डैक्स। ये सब रिपोर्ट डेवलपमेंट होने के बाद देन वी विल कम टू पावर BI सर्विस। क्लियर? Okay, sir. Yes, sir. Okay, sir. Right. As I told you, most important thing is these two. Power Okay, pivot so and power view. right. So उस अगर इन दोनों में से भी इंपॉर्टेंट आप पूछोगे, पावर व्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, Okay. क्योंकि आप जो भी करो फाइनली विजुअल्स बनाना ही है, राइट? एंड यूजर को क्या चाहिए, विजुअल्स ही चाहिए। आप पीछे क्या कर रहे हो, कैलकुलेशन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, क्लीन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, मॉडल बना रहे हो नहीं बना रहे हो, ही इज नथिंग वरीड अबाउट, उसको फाइनली विजुअल्स चाहिए रिपोर्ट में। जी सर। ठीक है, सो वी विल गो यस विद सर। this approach. Okay, we will go with the power view. View. यस सर। Right. So power view में first what we will learn, how to import the data. तो power पे डेस्कटॉप के अंदर डेटा को कैसे इंपोर्ट करते हैं। ओके, वी विल यूज द सेम फाइल, आई विल शेयर यू द फाइल ऑल्सो।
ऑलरेडी है हमारे पास, राइट. So I will show you today how to import the data from Excel file. I will also show you how to import the data from a database. ठीक है, आपके पास अभी डेटाबेस इंस्टॉल नहीं होगा. आई विल टेल यू व्हेन इट शुड बी इंस्टॉल्ड. ठीक है. तो फॉर एग्जांपल मेरा डेटा एक्सेल में है. ठीक है. इफ आई ओपन दिस एक्सेल, मेरे पास 3 टेबल है, मतलब 3 शीट है. एक है ऑर्डर शीट है, एक रिटर्न्स है, एक पीपल है. राइट. तो मुझे ये तीनों को पावर BI के अंदर लेके जाना है. उसके बाद इसके ऊपर मुझे एनालाइज करना है. राइट. Okay. राइट. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू इंपोर्ट द डेटा इनटू पावर BI. सो हमने पावर BI डेस्कटॉप ओपन किया है. दिस इज माय इंटरफेस. यहाँ पे इफ यू गो टू द होम टैब, फर्स्ट ऑप्शन इफ यू सी समथिंग कॉल्ड गेट डेटा. Yes, sir. ओके. गेट डेटा का इंग्लिश मीनिंग क्या है? डेटा को पुल करो. राइट. So when I click on get data, you see we have some options. Common data sources करके कुछ options है. Excel है, Power BI semantic model है, data flows है, Dataverse है, SQL server है, analysis services है, text file या CSV, web. सर यहाँ से डाटा को लेना है ना, हाँ. जो लिखा है कॉमन डाटा सोर्स, जितने भी सारे डाटा सोर्स है हमारे यहाँ पे कौन से सोर्स से आ रहा है उसी को ड्रैग करके यहाँ पे लाना है ना, ड्रैग नहीं करना है. आई विल टेल यू. मतलब ओके. ठीक करना है. हाँ, ओके. ये सारे इसको क्या बोलते हैं? कनेक्टर्स बोलते हैं. मतलब आपका डेटा जहां पे है उसके हिसाब से आपको कनेक्टर को सिलेक्ट करना है. सर एक क्वेश्चन था. हाँ. पहले सर एक पावर 2 मिनट मुझे टाइम दो. मैं एक्सप्लेन करने के बाद यू कैन आस्क मी क्वेश्चन. मोस्टली वहां पे आपके आंसर्स मिल जाएंगे. अगर नहीं मिलते हैं देन यू आस्क मी. यस सर. ठीक है. जस्ट बी पेशेंट फॉर 2 मिनट्स. ओके. एंड देन आई विल गिव यू. यस. तो गेट डेटा के अंदर आई हैव सम कॉमन डेटा सोर्सेस करके 10-12 डेटा सोर्सेस है. बट फॉर एग्जाम्पल मेरा डेटा कुछ ऐसा जगह पे है जहां पे जिसका नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है. फॉर एग्जाम्पल मेरा डेटा स्नोफ्लेक में है, या फिर क्या बोलते हैं, डेटा ब्रिक्स. जैसे ये सब क्या बोलते हैं? डेटा बेसेस बोलते हैं. जैसे सीक्वल सर्वर एक डेटा बेस है, माई सीक्वल एक डेटा बेस है, ऑरेकल एक डेटा बेस है, अज्योर डेटा ब्रिक्स एक डेटा बेस है. ऐसे बहुत सारे डेटा बेसेस होते हैं. हर एक कंपनी का अलग अलग डेटा बेस होते हैं. ठीक है. सो मुझे वहां से डेटा को लाना है. फॉर एग्जाम्पल मुझे डेटा ऑरेकल से लाना है. यहाँ पे ऑरेकल दिख रहा है क्या? नहीं. नहीं नहीं दिख सर. रहा है. तो हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव सो मेनी कनेक्टर्स, बट वो सब कब दिखेंगे आपको? जब यहाँ आप मोर पे क्लिक करोगे. ठीक है. लास्ट में क्या ऑप्शन है? मोर करके एक ऑप्शन है. व्हेन यू क्लिक ऑन मोर ऑप्शंस यू विल गेट ऑल द कनेक्टर्स हियर. ठीक है. बहुत सारे कनेक्टर्स हैं हमारे पास. सो फॉर एग्जांपल आपका डेटा ऑरेकल में स्टोर है, आपको ऑरेकल के साथ कनेक्ट करके लाना है. तो आप यहाँ पे सर्च में आके यू कैन टाइप ऑरेकल. ओके. यू हैव द ऑरेकल डेटाबेस कनेक्टर. अगर Okay. आपका डेटाबेस SQL सर्वर में है, सो यू विल टाइप SQL SQL. सर्वर. ओके. SQL सर्वर डेटाबेस है ये. सिमिलरली आपका डेटा फॉर एग्जांपल माई सीक्वल में है, तो दिस इज माई सीक्वल डेटाबेस. सिमिलरली आपका डेटा स्नोफ्लेक में है, यू टाइप स्नोफ्लेक यू विल गेट इट. आपका डेटा डेटा ब्रिक्स में है, अज्योर डेटा ब्रिक्स में है, सो दिस इज योर अज्योर डेटा ब्रिक्स में है. आपका डेटा शेयर पॉइंट में है, सो वी हैव शेयर पॉइंट कनेक्टर्स ऑल्सो. तो आपका डेटा एक्सेल में है, सो वी हैव एक्सेल कनेक्टर. आपका डेटा CSV फाइल में है या टेक्स्ट फाइल में है, तो यू कैन सर्च फॉर इट. एवरीथिंग यू विल फाइंड इट हियर. आपका डेटा वेब में है, कोई वेबसाइट में है, यू कैन यूज द वेब कनेक्टर. सो यू हैव ऑल द रिक्वायर्ड कनेक्टर्स इन पावर BI. आप डेटा कहीं पे भी हो, यू कैन पुल द डेटा बाय यूजिंग दिस कनेक्टर्स. ओके. सो जनरली आप कोई भी कंपनी में काम करोगे, वो लोग एक ही डेटाबेस यूज करते हैं, तो आपको हमेशा उसी के साथ ही कनेक्ट करना होगा. ठीक है. Yes, sir. राइट. अभी के लिए जो डेटा मैंने आपको दिखाया है एक्सेल, उसको मैं पुल करने की कोशिश करता हूँ. ठीक है. तो मेरा डेटा Okay, कहाँ sir. पे था? Excel में. एक्सेल में. तो सो व्हाट कनेक्टर आई नीड टू सेलेक्ट फ्रॉम हियर? Excel Excel work. workbook. Excel workbook. So we will select the Excel workbook and then click on connect.
कनेक्ट। तो वो पूछेगा बहुत सारे एक्सेल फाइल है, कौन सा फाइल को आपको लाना है। हम्म। Okay, so you will go and you will browse it and you will Sample search. store. Okay, आप जाओगे अपने फोल्डर में जाओगे एंड यू सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर फाइल एंड क्लिक ऑन ओपन। आप जैसे ही ओपन करोगे आपका क्या होगा, उस शीट में जो शीट आपने सेलेक्ट किया था, जो वर्कशीट आपने सेलेक्ट किया था, उसके अंदर जो जो टेबल्स थे वो सब यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है, सो यू नीड टू ओके। क्लिक ऑन द चेक बॉक्स। आपको जो टेबल चाहिए, फॉर एग्जांपल इसके अंदर मेरे पास 10-12 तीन टेबल टेबल। है, 10-12 हम्म शीट्स है, मगर मेरे रिपोर्टिंग के लिए मुझे सारे नहीं चाहिए। हम्म। मुझे जो चाहिए उसी को मैं लूंगा। तो मुझे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिर्फ ऑर्डर्स ही चाहिए। ठीक है, तो मैं जैसे जो टेबल मुझे चाहिए उस टेबल को मैं सेलेक्ट करूंगा एंड यहाँ पे वो डेटा का प्रीव्यू दिखाई देगा, मतलब डेटा कैसा दिखता है, पूरा डेटा नहीं दिखाई देगा, बस हम्म। एक सैंपल डेटा दिखाई देगा यहाँ पे। ओके, यस सर। सो जैसे आपका सैंपल डेटा ठीक लगे देन यू विल क्लिक ऑन लोड। एक सेकेंड। हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं। हाँ, जो डेट अच्छा। एक्सेल एक्सेल जो टेबल हमें चाहिए उसी टेबल को सेलेक्ट करेंगे एंड वी विल लोड द डेटा। जैसे ही हम डेटा को लोड करते हैं आपका डेटा पेन में यू विल गेट दैट टेबल। उस टेबल का जो ये ऑप्शन है ना, इसको जब एक्सपैंड करोगे इसके अंदर जो भी कॉलम्स थे वो सारे यहाँ पे दिखाई देंगे। ओके सर। ओके, तो मैंने क्या किया, अभी डेटा एक्सेल से पुल किया, वैसे ही मेरा कुछ डेटा फॉर एग्जांपल सीक्वल सर्वर में एक डेटाबेस के साथ कनेक्ट करके दिखाता हूँ। ओके, मेरे पास सीक्वल सर्वर इंस्टॉल्ड है मेरे लैपटॉप में। जैसे हमने एक्सेल वर्कबुक सेलेक्ट किया था उसके बाद उसने क्या पूछा कि कौन सा एक्सेल फाइल को कौन से? लाना है, मतलब इट इज एग्जैक्टली। आस्किंग फॉर यू एड्रेस। पूछ ओके रहा सर। है कौन सा एड्रेस में आपका एक्सेल फाइल है, कौन से लोकेशन में आपका एक्सेल फाइल है जिसको हमको लाना है। राइट, यस और नो। यस सर। यस सर। सिमिलरली आप जब डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना चाहोगे उसको भी डेटाबेस का एड्रेस बताना होगा। एड्रेस मतलब लोकेशन, कनेक्शन डिटेल्स लोकेशन। बोलते हैं। ठीक है, तो कनेक्शन डिटेल्स क्या होता है डेटाबेस का, सर्वर नेम और डेटाबेस नेम होता है। तो ये मेरा सर्वर नेम है तो मैंने इसको कॉपी कर लिया। ओके, तो आई विल कनेक्ट। तो ये मेरा सर्वर है, इसके अंदर आई हैव मल्टीपल डेटाबेसेस, ये एक डेटाबेस है, ये एक डेटाबेस है, ऐसे बहुत सारे डेटाबेस है इसके अंदर। फॉर एग्जांपल सेल्स एनालिटिक्स के अंदर टेबल्स के अंदर आई हैव सम टेबल्स, आई विल कम टू दिस वन, नथिंग टू वरी। ओके, दिस इज नॉट आवर वर्क बट आई विल शो यू। ओके, तो ये 3 टेबल है हमारे पास, क्वार्टरली सेल्स है, प्रोडक्ट है, डेट डाटा डायमेंशन टू। करके 3 टेबल है हमारे पास। मुझे ये तीनों टेबल को पावर बीआई में लाना है। हम्म। ठीक है, तो मैंने सर्वर नेम कॉपी किया था, अभी यहाँ पे जाऊंगा, पावर बीआई में जाऊंगा और गेट डेटा में जाऊंगा। अभी कौन सा कनेक्टर लेना है हमें, मोर। मोर में जाके, एसक्यूएल। यहाँ पे पेस्ट करना। सीक्वल। नहीं नहीं, यहाँ पे एसक्यूएल। पहले कनेक्टर सेलेक्ट करना है ना, हाँ, सीक्वल सीक्वल। सीक्वल सर्वर डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है। सो मैं यस सर। वो कनेक्टर को सेलेक्ट करूंगा, क्लिक ऑन कनेक्ट, जैसे एक्सेल में किए थे सेम ही कर रहे हैं। वहां पे एक्सेल में पूछ रहा था का लोकेशन क्या है, सीक्वल सर्वर हम्म। में पूछेगा सर्वर का नाम क्या है। सर्वर का। तो मैंने जो सर्वर का नाम लिया था वो सर्वर को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। यस सर। डेटाबेस नेम ऑप्शनल है, आप दे सकते हो, आपको अगर क्लियरली पता है कौन सा डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है आप उसका नाम यहाँ से कॉपी करके दे सकते हो, हम्म। कॉपी करके यहाँ पे दे सकते हो। हाँ, या साइज भी फिर छोड़ सकते हैं। या फिर यू कैन लीव इट, ये ऑप्शनल है, सर्वर नेम मैंडेटरी है, डेटाबेस नेम ऑप्शनल है, सो आप इसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ सर्वर नाम दो, इंपोर्ट क्या है, डायरेक्ट क्वेरी क्या है, एडवांस क्या है, आई विल कम बैक टू लेटर, अभी के लिए नहीं चाहिए आपको। ठीक है, आई विल टेल यू व्हाट इज द डिफरेंस एंड व्हेन टू यूज व्हाट, आई विल टेल यू लेटर। मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल गो विथ इंपोर्ट मोड ओनली। ठीक है, यस नो। यस सर। यस सर। तो सर्वर का नाम दे दिया मैंने,
एंड देन क्लिक ऑन ओके। तो क्या होगा, ये पावर भी जाके उस सीक्वल सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो उसके अंदर जो भी डेटाबेस थे यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे यहाँ पे अगर काउंट करोगे आप, 1 2 3 4 5 6 7 डेटाबेस है यहाँ पे, राइट। इस हाँ सर्वर के yes sir। इस सर्वर के अंडर में कितने डेटाबेस है? 7। 7। तो इफ यू कम हियर एंड सी, वही सर्वर के अंदर कितने हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7, 7। राइट। सो यहाँ से कौन सा डेटाबेस में आपका टेबल्स है? सो वी विल गो टू दैट पर्टिकुलर Yes. डेटाबेस, और जो टेबल्स हमें चाहिए वो टेबल्स को हम सेलेक्ट करेंगे, राइट। yes sir। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है? क्लिक ऑन लोड। लोड। तो क्या हो जाएगा, वो डेटा, जो भी टेबल्स आपने सेलेक्ट किया वो सारे टेबल्स यहाँ पे आ जाएंगे। yes sir। ठीक है, जो भी टेबल को आप एक्सपेंड करोगे उसके अंदर जो भी कॉलम्स है, इट विल शो दोस कॉलम्स। एक बार डेटा पावर बीआई के अंदर आने के बाद, once the data comes inside Power BI, it doesn't matters to Power BI कि आपका डेटा एक्सेल से आ रहा है, कि सीक्वल से आ रहा है, कि शेयर पॉइंट से आ रहा है, कि डेटाब्रिक्स से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, it doesn't matters to Power BI. Power BI will treat all the data sources same once data is inside Power BI. ठीक है, Good sir. Yes sir. yes sir। सिर्फ आप कनेक्ट करने के लिए ही आपको सर्वर नेम वो सब डिटेल्स आपको चाहिए। एक बार डेटा पावर बीआई के अंदर आने के बाद पावर बीआई को फर्क नहीं पड़ता है कि आप डेटा एक्सेल से लाए हो या डेटाबेस से लाए हो या क्लाउड से लाए हो, कहाँ से लाए हो, इट डजेंट मैटर्स टू पावर बीआई। सबके लिए इट विल वर्क इन द सेम वे। पावर बीआई को डाटा सोर्स से कोई मतलब नहीं होता है। जी सर। हाँ, डेवलपमेंट के लिए। जी सर। ओके, तो पावर बीआई सर, सर एक क्वेश्चन था, पावर बीआई हर कोई डाटा सोर्स से कनेक्ट हो सकता है? हो सकता है। जितना भी डाटा सोर्स है हम हाँ यूज करते हैं लोग, वो हाँ, सबसे कनेक्ट हो सकता है? सबसे कनेक्ट हो जाएगा। वी हैव सो जी मेनी, सर। वी हैव 100+ कनेक्टर्स यहाँ पे, ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा ये और होंगे। सर फिर भी मान के चलो कोई सोर्स ना हुआ तो कैसे ऐड होगा? हाँ, उसका अगर नहीं है तो जनरली क्या होता है, वो कंपनी का काम होता है, वो दे विल इंस्टॉल सम थर्ड पार्टी टूल्स, जैसे ओडीबीसी वगैरह कुछ होते हैं, ठीक है। वो जी सर। सिस्टम डीएसएन करके वो सब इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करके देन दे विल ट्रेन यू हाउ टू कनेक्ट टू दैट वन एंड ब्रिंग द डेटा। अच्छा। ओके, इट इज स्पेसिफिक टू दैट पर्टिकुलर कंपनी, कि उनके पास वो उनका एडमिन टीम जो होता है, वो लोग कुछ हम्म। नए इंस्टॉलेशन वगैरह करते हैं, करने के बाद अच्छा। आपको ट्रेन करेंगे कि यू कैन यूज दिस वन, आप ये हम्म। कनेक्शन यहाँ पे देके इसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। तो कुछ ठीक है, yes sir। राइट। तो वंस डेटा आप एक बार पावर बीआई के अंदर लाने के बाद, इट ट्रीट्स एवरीथिंग सेम। ठीक है, यस सर। ओके। तो नाउ आई डोंट वांट टू गो टू, मतलब मल्टीपल टेबल्स के साथ हम नहीं जाएंगे, वी विल गो टू ए विथ ए सिंगल टेबल। सो आई विल डिलीट ऑल दिस थिंग्स एज ऑफ नाउ, डिलीट फ्रॉम मॉडल, डिलीट फ्रॉम मॉडल। फर्स्ट लेट्स कीप इट सिंपल, बाद में हम कॉम्प्लिकेशंस में आएंगे। पहले से कॉम्प्लिकेशंस में जाऊंगा तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ठीक है, राइट। तो हमारे पास एक टेबल है, ऑर्डर्स टेबल है, उसके अंदर दीज आर द डिफरेंट कॉलम्स। इसको क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड मेटा डेटा। वहां पर बोलते हैं रॉ डाटा, यहाँ पर मेटा डाटा। नहीं, मेटा डेटा मतलब क्या है? एनीबडी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटा डेटा? लाइक which data is not in the form of वो जिसका दूसरे डेटा के साथ कोई रिलेशन नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। क्लीन डाटा।
नो नो नो, मेटा XML डेटा। XML फाइल सर, XML फाइल सर। नहीं 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 नहीं, मेटा डेटा मतलब क्या होता है? डेफिनेशन वाइज अगर मैं बोलूंगा, डेटा अबाउट डेटा इज कॉल्ड मेटा डेटा। मतलब क्या है? अभी यहाँ पे ये ऑर्डर्स टेबल है, ये ऑर्डर्स टेबल के अंदर ये सारे कॉलम्स है, राइट? हम्म, ये कॉलम के अंदर क्या होगा हमें पता है, बट क्या है हमें नहीं पता। जी सर। जैसे सिटी है, सिटी के अंदर सिटी के नाम होते हैं वो हमको पता है, बट कौन से सिटी के नाम है हमें नहीं पता यहाँ से, जी सर। राइट? जहाँ पे यहाँ पे हमें कस्टमर नेम करके कॉलम है, हमें पता है इसके अंदर कस्टमर के नेम ही मिलेंगे, बट कौन से कस्टमर का नेम है हमें नहीं पता। बेसिकली डिस्क्राइब एंड इंफॉर्मेशन ना। करेक्ट। तो जैसे हमारा टेक्स्ट बुक्स वगैरह होते हैं, उसमें इंडेक्स पेज होता है ना, इंडेक्स पेज में हमें पता नहीं होता है कि चैप्टर के अंदर क्या होगा, मगर ये चैप्टर कहाँ पे मिलेगा वो आइडिया मिल जाता है, कौन से पेज में ये चैप्टर है करके, राइट? एग्जैक्टली। ओके, मतलब डेटा के बारे में जो डेटा है, मतलब इसके अंदर जो डेटा है उसके बारे में, उसके कॉलम नेम्स है, बेसिकली फील्ड नेम्स। कॉलम या फील्ड बोथ आर सेम। ओके, सो कॉलम नेम्स को हम क्या बोलते हैं? मेटा डेटा बोलते हैं। मतलब इसके अंदर क्या डेटा है हमें पता नहीं है, मगर क्या हो सकता है वो पता है। ठीक है, पूरा डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिटेलिंग कॉलम। डिटेलिंग ऑफ डाटा ना सर, वही। हाँ, डेफिनेशन वाइज इफ यू आर आस्किंग मी, मेटा डेटा का मतलब है डेटा अबाउट द डेटा। ओके। ठीक है, Yes, मेटा sir. डेटा इज नथिंग बट डेटा अबाउट डेटा। ठीक है, here is Sir. Yes, sir. Yes, sir. सर ये भी now, बोल सकते हैं कि डाटा के अंदर डाटा क्या है। नहीं समझा। नहीं नहीं, क्या पूछ रहे हो? नहीं समझे, नहीं नहीं, समझा मैं मैं। बोल रहा हूँ कि डाटा अबाउट डाटा ना, तो डाटा के अंदर और क्या डाटा है, वही मेटा डाटा है ना। नहीं, डेटा को जो डिस्क्राइब करता है ये भी तो एक ओके। डेटा ही है ना, जो यस कैटेगरी सर। नेम ये भी एक डेटा ही है ना, जो डेटा को हम्म। डिस्क्राइब करता है उस डेटा को मेटा डेटा बोलते हैं। ओके ओके, राइट। सर। ओके, सो अभी हम वी आर क्लियर अबाउट द इंटरफेस, क्या क्या ऑप्शंस है, कहाँ से कैसे जाना है, ओके, उस डेटा को कैसे पुल करना है, दैट इज क्लियर, राइट? Yes, यस sir. सर। राइट। आपको ऑलरेडी पता है फैक्ट, अभी ये टेबल व्यू में क्या होता है, डेटा दिखाई देता है यहाँ पे। ओके, जो डेटा हमने पुल किया है टेबल व्यू में क्या होता है, वो डेटा है, पहले इसको डेटा व्यू बोलते थे, अभी इसको टेबल व्यू बोल रहे हैं। ओके, कुछ कुछ महीने पहले दिस नेम वाज डेटा व्यू, नाउ दे हैव चेंज्ड इट टू टेबल व्यू। तो इसके अंदर आपको पूरा डेटा दिखाई देगा जो आपने पुल किया है, ठीक है? Yes, sir. मॉडल व्यू में आपका डेटा मतलब वही सेम मेटा डेटा ही दिखाई देगा यहाँ पे आपको, बट एक ही टेबल है। अगर मल्टीपल टेबल्स होते तो मैं रिलेशनशिप बनाता, अभी एक ही टेबल है, सो आई डोंट नीड टू क्रिएट एनी रिलेशनशिप, राइट? Yes, sir. राइट। सो नाउ व्हेन आई गो टू टेबल व्यू, यहाँ पे जो भी कॉलम्स है यू ऑलरेडी नो व्हाट आर द फैक्ट्स कॉलम, व्हाट आर द डायमेंशन कॉलम्स, ऐसा नो? यस सर। Yes, sir. ओके, सो फैक्ट मतलब क्या है? Numerical. दीज आर न्यूमेरिक Numerical, वैल्यूज। हम्म। which जी gives सर। the something meaningful if we do summation. Yeah, okay, these are numeric values which are used to measure. Okay, mostly. ओके, जो एग्रीगेटेड वैल्यू होता है उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए, जैसे मैं सम ऑफ सेल्स करूंगा, सम ऑफ रो आईडी करूंगा, सो देयर इज अ डिफरेंस, सम ऑफ रो आईडी का कुछ मीनिंग नहीं होता है। Yes, sir. ओके, सो दिस इज कॉल्ड फैक्ट। डायमेंशन मतलब क्या है?
which provides meaning to the fact. Yes, sir. Okay, these are always text values, Text okay, string value. values. ठीक है? Right. Now I will show you one visual and then we will close for today. Okay, आपको visual जब आपको visual बनाना है, आपको पहले क्या करना पड़ेगा? Click on the report canvas. ओके, ये जो रिपोर्ट कैनवास है वहां पे एक बार आपको क्लिक करना पड़ेगा। ओके, पहले जब आप सीख रहे हो जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसा ही करो। जब आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। इनिशियल वॉट एवर आई एम सेइंग जस्ट फॉलो देम, ठीक है। whenever you create any visual just click on the empty space में एक बार लेफ्ट क्लिक करो। उसके बाद you open your visualization pane में we have so many visuals here, okay, we will go first with the bar chart, stacked bar chart करके एक है, right। उससे पहले can somebody tell me which one is y-axis, which one is x-axis? जो ऊपर वाला है उसे एक्स एक्सिस बोलते ऊपर हैं। वाला नीचे वाला ऐसा मत बोलो, ट्राई टू यूज करेक्ट वर्ड्स। Vertical one is and vertically y-axis. वर्टिकल वन इज कॉल्ड Y-axis. वाई एक्सिस। वर्टिकल मतलब क्या, ये वाला या ये वाला, नीचे वाला? ऊपर वाला। हाँ, ऊपर ओके, वाला। दिस इज वाई Arrow. एक्सिस, वेरी गुड। ओके, सो आपको कैसे एक्सप्लेन करना है? द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस, ठीक है। द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, X-axis. ठीक है। ऑलवेज ट्राई टू यूज द करेक्ट टर्मिनोलॉजी, ठीक है, राइट। सो नाउ आई हैव a visual like this, and I have a visual like this. ओके, ये पहला वाला है फर्स्ट विजुअल, दिस इज सेकंड विजुअल। इन दोनों में से विच वन इज द कॉलम चार्ट, विच वन इज द बार चार्ट? फर्स्ट वन इज First बार one is चार्ट। the column and second one is the bar. Okay, I'm getting two different answers. Okay, so correct So answer is, first, yeah, the correct answer is first the first one is called column chart. ठीक है, the second one is the bar chart. I bar think chart. Deepika you said that is correct. Okay, so इसको बोलते हैं कॉलम्स। जो वर्टिकल होते हैं उसको क्या बोलते हैं? कॉलम्स बोलते हैं। जो हॉरिजॉन्टल होते हैं उसको बार बोलते हैं, बार चार्ट बोलते हैं। ठीक है। ये सर। सिंपली आपको याद रखना है, तो हमारे घर में जो अपार्टमेंट या विला आपका जो भी है उसमें जो पिलर्स होते हैं ना, उस पिलर्स को हम कॉलम्स भी बोलते हैं, जी सर, और बीम को बार चार्ट बोलते हैं। बीम को बार बोलते हैं, जी ठीक सर। है। जो हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल होता है उसको कॉलम बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको बार बोलते हैं, ठीक है। एवरीबॉडी क्लियर? यस ये सर। सर। यस सर। राइट। नाउ फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 स्टूडेंट है, S1 S2 S3 करके, ठीक है। हेलो, यस सर। यस सर। 3 स्टूडेंट हैं, उनके मार्क्स है, एक का 30 मार्क्स है, एक का 40 मार्क्स आया है, एक का 50 मार्क्स आया है, ठीक है। तो अगर मैं कॉलम चार्ट यूज करता हूं तो मुझे कौन से एक्सिस में स्टूडेंट को डालना है, कौन से एक्सिस में मार्क्स को डालना है, दिखाना है। जी सर, नीचे सर Student को स्टूडेंट्स को डालना है, x-axis, नीचे सर एक जो में कॉलम के एक नीचे एक स्टूडेंट्स को में डालना है, स्टूडेंट। और लेफ्ट साइड में मार्क्स डालना है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है? एक्स एक्सिस में वी विल पुट द स्टूडेंट नेम्स, राइट, यस सर। और वाई एक्सिस में वी विल पुट द स्कोर्स, मे बी 0 20 30 50। यस 50 सर। ऐसे करके एक्सिस में बेस्ड जी ऑन सर। इंटरवल आएगा, राइट। अगर मैं उल्टा करता हूं तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम में हम लोग स्टूडेंट, हम लोग 3 दिखा रहे हैं ना, तो तीनों का
वर्टिकल लाइन में कुछ लेना देना नहीं होगा। हाँ, so तो basically उससे we will not be उल्टा able उल्टा to। करेंगे तो हमको बार चार्ट में दिखाना पड़ेगा, कॉलम हाँ चार्ट नहीं, में। सिर्फ कॉलम की बात कर रहा हूँ अभी मैं, सिर्फ कॉलम जी सर। में। अगर मैं ये जो S1 S2 S3 है वाई एक्सिस में डालूंगा, और जो मार्क्स है 0 1 2 3 4 जो भी है एक्स एक्सिस में डालूंगा, तो प्रॉब्लम क्या होगा? वी विल नॉट बी एबल टू रीड द विजुअल, विजुअल को जी समझ सर। नहीं पाएंगे। जी एग्जैक्टली। सर। राइट, वो मीनिंगलेस हो जाएगा, राइट। जी सर। यस सर। तो सर यहाँ पे अगर क्लाइंट को जितना सिंपल देंगे वो उतना अच्छा होगा। नहीं, वो सिंपल नहीं, वो मीनिंगलेस ही हो नहीं जाएगा। नहीं, हाँ जी सर। सर। मीनिंगलेस भी हो जाएगा, ठीक है सर। ओके, उसका अंदर कुछ मीनिंग ही नहीं रहेगा, उसको कोई नहीं पढ़ नहीं नहीं रहेगा। पाएंगे। जी सर। राइट, सो दैट इज रॉन्ग, कंप्लीट रॉन्ग दैट इज। ठीक है। तो अगर आप कॉलम चार्ट यूज कर रहे हो, तो आपका जो डायमेंशन है S1 S2 S3 क्या है? ये टेक्सचुअल स्ट्रिंग वैल्यू से, राइट। एग्जैक्टली। तो आपका डायमेंशंस हमेशा एक्स एक्सिस में होंगे। ठीक है। Yes, sir. आपका ये जो मार्क्स है ये क्या है? दीज आर फैक्ट्स, राइट। न्यूमरिक। हाँ, Facts, fact. न्यूमेरिक मतलब फैक्ट्स। तो आपका फैक्ट्स एग्जैक्ट। हमेशा वाई एक्सिस में रहेंगे। यस सर। अगर आप बार चार्ट यूज करते हो, सेम सेम स्टूडेंट्स और कोर्स को दिखाना है, एंड वी हम्म वांट टू शो इट इन ए बार चार्ट, तब क्या होगा? हम्म। आपका फैक्ट तब कहाँ पे आएगा? हॉरिजॉन्टल में। X फैक्ट axis आएगा में एक्स X-axis. एक्सिस। X एग्जैक्टली। axis में एग्जैक्टली। ओके, दैट इज हॉरिजॉन्टल, करेक्ट ओनली। ओके, तो यहाँ पे आपका फैक्ट्स आएंगे, मतलब 0 वन 10 20 जो भी 20 है 30 86। यहाँ पे आएंगे। और वाई एक्सिस में क्या आएंगे? Dimensions. dimensions डायमेंशन डायमेंशन। आएंगे, S1 S2 S3। तो अगर मैं इसमें पूछूंगा आपका S1 का स्कोर कितना है, आप कितना बोलोगे? 10. आप 15। 20 ओके, समवेयर अराउंड 10। जी ये सर। S1 है ना, हाँ यस सर सर। जी सर। राइट। यस। S2 का क्या होगा? समवेयर अराउंड 17 18 या 15 के, हाँ 15 और 20 के 17 10 to बीच। 20। 10 to ओके, 20 बिटवीन। हाँ जो भी है। तो S3 20 के आसपास कहीं पे है। हाँ सर। एग्जैक्टली। जी सर। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग आसानी से पढ़ सकते हैं, S1 इज समवेयर अराउंड 25 20 से 30 25। के बीच में है। S2 30 और 50 के बीच में है। S3 40। समवेयर अराउंड लिटिल अबव 50 और समथिंग। 40 या 50 होगा। राइट। 55। हाँ, बट ये आइडिया के लिए है, जनरली आप जब विजुअल बनाओगे एग्जैक्ट नंबर से आ जाएंगे, वो अलग है। बट आई एम ट्राइंग टू जी शो सर। यू कि अगर हम ऐसे डालेंगे तभी हम विजुअल को पढ़ पाएंगे, नहीं तो हम वी विल नॉट बी एबल टू रीड द विजुअल। yes यस sir सर। राइट, एवरीबॉडी क्लियर अबाउट दिस? yes यस sir सर। यस। राइट। राइट, कॉलम चार्ट क्या है, बार चार्ट क्या है, उसके बाद डायमेंशन क्या है, फैक्ट क्या है, कौन से एक्सिस में किसको डालना है, दिस थिंग्स क्लियर? Yes, sir. yes sir यस सर। राइट। नाउ वी विल डू वन विजुअल एंड देन वी विल क्लोज। मेरा रिक्वायरमेंट है कैटेगरी बाय सेल्स, मतलब ईच कैटेगरी का सेल्स क्या है दिखाना है। ओके, यस सर। इन्हें इन्हें बार चार्ट, एक बार चार्ट में मुझे कैटेगरी और सेल्स का इंफॉर्मेशन दिखाना है। तो कैटेगरी और सेल्स का दिखाने के लिए कितने कॉलम्स चाहिए हमको? दो। दो। टू दो. कॉलम्स, व्हाट आर दे? यस सर। एक कैटेगरी एक कैटेगरी एंड सेल्स। कैटेगरी category कॉलम and कैटेगरी sales चाहिए, सेल्स कॉलम और एक चाहिए। सेल्स। इसमें से फैक्ट कौन सा है, डायमेंशन कौन सा है? Sales, फैक्ट fact है है, सेल्स और category डायमेंशन है dimension है. कैटेगरी डायमेंशन। ओके, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें ये सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे कि कौन से कॉलम चाहिए, कितने कॉलम्स चाहिए, उसमें से फैक्ट्स क्या है, उसमें से डायमेंशन क्या है, वो इजीली वी विल बी एबल टू फाइंड आउट, राइट। Yes, sir. यस सर। वंस यू फाइंड आउट दैट वन, व्हाट यू नीड टू डू, आपको जैसे मैंने बोला था, आपको पहले क्या करना है, आपको रिपोर्ट कैनवस में कहीं पे भी क्लिक करना है। उसके बाद कौन सा विजुअल में दिखाना है आपको, मुझे बार चार्ट में दिखाना है, सो आई विल टेक द फर्स्ट वन। ओके, जब आप कर्सर को मूव करेंगे उस चार्ट का नाम आ जाएगा, ठीक है। जी सर। तो ये वाला मेरा पहला वाला स्टैक्ड बार, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैक्ड एंड क्लस्टर्ड बार चार्ट, आई विल टेल यू लेटर, ठीक है। तो ये मेरा बार चार्ट है, स्टैक्ड बार चार्ट आ गया। इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हो आपके हिसाब से, राइट। सो जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे आप विजुअलाइजेशन पेन में नीचे देखोगे, यू हैव समथिंग कॉल्ड वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, राइट। यस सर। अगर आप विजुअल को सिलेक्ट नहीं करते हो तो वो वाला नहीं आएगा। Okay.
तो यू नीड टू सेलेक्ट द विजुअल। आप विजुअल को जब सेलेक्ट करते हो तभी आपको उस विजुअल के रिलेटेड, इसको क्या बोलते हैं, फील्ड वेल्स बोलते हैं। These are related to each visual. ओके, हर एक विजुअल का अलग अलग फील्ड वेल्स होते हैं। ठीक है, जैसे हमने बार चार्ट सेलेक्ट किया, इस बार चार्ट का वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस वी हैव फील्ड वेल्स, राइट। तो हमें क्या दिखाना है, कैटेगरी बाय सेल्स दिखाना है। सो कैटेगरी कॉलम जो है वो कौन से एक्सिस में जाएगा, वाई वाई एक्सिस। वाई Y एक्सिस में axis. जाएगा। सो आपको क्या करना है, इसको यहाँ से ड्रैग करना है और यहाँ पे ड्रॉप करना है। यस सर। उसके बाद क्या दिखाना है, हमको सेल्स दिखाना है। सेल्स। आप एक्स सेल्स एक्सिस टाइप करोगे, ये सेल्स को एक्स ड्रैग एक्सिस। करोगे, एक्स एक्सिस में डालोगे, दैट्स इट। ठीक है, यस सर। तो आपने वाई एक्सिस में, अगर आप ऐसे नहीं करते हो, अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे कैटेगरी को लाके यहाँ पे ड्रैग करता हूँ और सेल्स को भी लाके डायरेक्ट विजुअल पे ड्रैग करता हूँ, तब भी काम करेगा, जी क्योंकि सर। पावर BI इज इंटेलिजेंट एनफ टू अंडरस्टैंड विच वन इज फैक्ट विच वन इज डायमेंशन। जी सर। बट आई डोंट रिकमेंड यू टू डू इन दैट वे। फर्स्ट समझने की कोशिश करो, ये वहां पे क्यों जा रहा है, ये यहाँ पे क्यों आ रहा है। ओके सर। ठीक है, सर तो वहां आप पर तो जब विजुअल वैल्यूज बनाओगे, नहीं दिखा रहा है ना, जैसे वैल्यूज नहीं दिखा रहा है, कैटेगरी में कितना सेल हुआ है हाँ वो मैं दिखाने के लिए बताऊंगा, हमें। वहां तक गया नहीं मैं। जी सर। ठीक है, जस्ट आई एम ट्राइंग टू शो यू विजुअल, अभी तक मैंने वहां तक गया नहीं। ठीक है, तो आप डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप मत करो विजुअल के ऊपर। ओके, यू यूज द फील्ड वेल्स एंड अकॉर्डिंगली यू विल ड्रॉप इट। इस ऐसे करने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। क्लियर, यस सर। राइट। विजुअल बनने के बाद मतलब आपने कैटेगरी डाल दिया, सेल्स यहाँ पे डाल दिया, मगर ये विजुअल इतना अच्छा दिख नहीं रहा है। यहाँ से मुझे पता नहीं चल रहा है कि टेक्नोलॉजी का वैल्यू क्या है, फर्नीचर का वैल्यू क्या है, ऑफिस सप्लाईज का वैल्यू क्या है। ये जो नाम भी है छोटे हैं, इट इज़ जी नॉट सर। सो अपीलिंग नहीं है। ओके, यहाँ पे भी सम ऑफ सेल्स नहीं चाहिए मुझे, इट मे बी टोटल सेल्स चाहिए यहाँ पे, या फिर सेल्स बाय कैटेगरी ही चाहिए मुझे हेडिंग। मतलब क्या करना है, इसको थोड़ा ब्यूटीफाई करना है, दिखने में सुंदर बनाना है, जी सर। राइट। तो उसके लिए हम्म। हम लोग क्या करेंगे, यू नीड टू सेलेक्ट द विजुअल। उसके बाद विजुअलाइजेशन पेन में बीच में एक पेंट का आइकॉन है ना, ब्रश का आइकॉन है, ये क्या करता है, फॉर्मेट योर विजुअल, आपका विजुअल को फॉर्मेटिंग करता है। ओके ठीक सर। है, अगर आप विजुअल को सेलेक्ट नहीं करोगे तो दूसरा ऑप्शन आ जाएगा, दिस इज फॉर द रिपोर्ट पेज, कैनवास को फॉर्मेट करेगा, विजुअल को नहीं। ओके सर। सो हमेशा यू नीड टू रिमेंबर कि आपको विजुअल को सेलेक्ट करना है, उसके बाद ही यहाँ पे आना है। ठीक है, ओके यस सर। राइट। तो यहाँ पे आने के बाद वी हैव सो मेनी ऑप्शंस। ठीक है, तो पहले जो ऑप्शन रेगुलरली हम यूज करते हैं, आई एम गोइंग टू टेल यू दैट वन फर्स्ट। ठीक है, तो हर एक विजुअल में हमें पहले नंबर्स दिखाने पड़ते हैं, लेबल्स दिखाने पड़ते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डेटा लेबल्स। लेबल्स बोलते हैं। तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, लेबल करके, डेटा लेबल करके। ओके, हमारे पास डेटा लेबल आ जाएगा, या फिर आप मैन्युअली इसको ड्रैग भी कर सकते हो, यू विल सी समथिंग कॉल्ड डेटा लेबल्स। इस डेटा लेबल्स को आपको ऑन करना है। जी ठीक सर। है, ओके ऑन करने से क्या होगा, एग्जैक्ट नंबर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद इसी नंबर को थोड़ा बड़ा करना है, बोल्ड करना है। तो इसी के अंदर आप जाओगे, डेटा लेबल्स के अंदर आप जाओगे एंड यू विल गो टू द वैल्यू। ओके, वैल्यू है, इसको एक्सपैंड करोगे, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हो। ओके, इसको आप फॉन्ट चेंज भी कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, जो भी करना है आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, यस सर। यस सर। उसके बाद ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस का वैल्यू भी मुझे थोड़ा बड़ा करना है। तो मुझे क्या करना है, फिर से इसके ऊपर तक जाएंगे, हियर आई हैव समथिंग कॉल्ड एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को एक्सपेंड करूंगा, इसके अंदर वैल्यूज में जाऊंगा और इसका साइज बड़ा करूँगा। मैं भी 11 करूंगा और इसका फॉन्ट चेंज कर दूंगा बोल्ड पे। सिमिलरली वाई एक्सिस का भी मुझे चेंज करना है, तो इस बार क्या करेंगे हम, वी विल गो इनसाइड वाई एक्सिस, यहाँ पे इसका साइज इंक्रीज करेंगे, इसका फॉन्ट चेंज करेंगे, राइट।
एक्स sir. एक्सिस का टाइटल ए है, सम ऑफ सेल्स जो है एक्स एक्सिस का टाइटल है। यहाँ पे मुझे सिर्फ इंस्टेड ऑफ सम ऑफ सेल्स मुझे क्या करना है, टोटल सेल्स दिखाना है। तो मैं क्या करूँगा, फिर से एक्स एक्सिस के अंदर जाऊँगा, इसके अंदर जहाँ पे टाइटल है, टाइटल के अंदर जाऊँगा, और यहाँ पे जो टाइटल ऑटो है इसकी जगह पे मैं क्या दूंगा, टोटल सेल्स करके मैन्युअली टाइप करूँगा। ठीक है, इसका साइज भी मैं इंक्रीज कर सकता हूँ, इसका भी मैं फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ। सिमिलरली वाई एक्सिस का टाइटल भी मुझे चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, आई विल गो टू द वाई एक्सिस एंड आई विल गो टू द टाइटल, कैटेगरी ही रहना है, सो आई वॉन्ट चेंज एनीथिंग। यहाँ से मैं इसको बोल्ड करूँगा एंड साइज आई विल कीप इट सेम। उसके बाद ओवरऑल जो टाइटल है, अभी तक हम विजुअल का चेंज कर रहे थे, अभी ओवरऑल कुछ भी अगर चेंज करना है तो यू विल गो टू जनरल, वहीं पे साइड में जनरल टैब है ना, जनरल टैब में जाएंगे, यहाँ पे टाइटल में जाएंगे, इंस्टेड ऑफ सम ऑफ सेल्स मुझे क्या चाहिए, सिर्फ सेल्स बाय कैटेगरी चाहिए। और इसका भी मैं साइज, इसको फॉन्ट बोल्ड करूंगा, साइज लेट इट बी 14। Okay. ठीक है, अभी ठीक है। Yes, sir. इसको आप बॉर्डर वॉर्डर भी दे सकते हो, कैसे दोगे, अगेन यू नीड टू क्लिक ऑन दिस वन, गो टू फॉर्मेट योर विजुअल, गो टू जनरल, यहाँ पे वी हैव समथिंग कॉल्ड एफेक्ट्स। Yes, sir. ओके, क्लिक ऑन एफेक्ट्स, एफेक्ट्स के अंदर यू विल सी समथिंग कॉल्ड विजुअल बॉर्डर, तो आप बॉर्डर को ऑन कर सकते हो। जैसे ही बॉर्डर को ऑन करोगे यू विल गेट ए बॉर्डर लाइन हियर, बट ये बॉर्डर लाइन बहुत ही स्ट्रांग है, मतलब डार्क है, मुझे थोड़ा लाइट करना है, तो क्या करूँगा, मैं सेलेक्ट करूँगा, फिर से वहीं पे जाऊँगा, जनरल, एफेक्ट्स, विजुअल बॉर्डर, यहाँ पे ये जो डार्क कलर है इसको मैं क्या करूँगा, थोड़ा लाइट कलर दूंगा, तो नाउ इट बिकेम लाइटर, राइट। Okay. Yes, sir. और Yes, ये sir. जो कॉर्नर है ये शार्प है, जैसे इसको मुझे थोड़ा रेडियस देना है, तो फिर से मैं वहीं पे जाऊंगा, जनरल, इफेक्ट्स, ये जो विजुअल बॉर्डर है यहाँ पे जो राउंडेड कॉर्नर है ना, इसको थोड़ा मैं इंक्रीज कर दूंगा, तो क्या हो जाए, यहाँ पे राउंडेड एजेस आ जाएंगे। ठीक है, Yes, sir. Okay, sir. और भी कर सकते हैं, यू कैन अगेन गो देयर, देयर इज समथिंग कॉल्ड शैडो, इफेक्ट्स में जाके ये जो शैडो है इसको आप ऑन कर सकते हो, ताकि ये एक छोटा सा शैडो 3D जैसा शैडो आ जाएगा। Yes, sir. क्लियर, Yes, sir. okay, these are the major formatting options generally we will use in most of the places। ये बॉर्डर और शैडो भी नहीं देते हैं रियल टाइम में, ये शैडो ये बॉर्डर भी ज़्यादा नहीं देते हैं, क्योंकि इट हैज़ टू बी सिंपल। ठीक है, Yes, sir. क्लियर, Yes, sir. Yes, sir. ओके, आई थिंक वी विल स्टॉप फॉर टुडे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी अच्छा नहीं है। तो आई जस्ट वांटेड टू शो एक विजुअल कितना सिंपली, कितना आसानी तरीके से हम बना सकते हो। नाउ यू टेल मी, एक्सेल डिफिकल्ट है या पावर बीआई डिफिकल्ट है? So, और थोड़ा Excel। difficult है। दोनों ही Excel, Excel, sir. कंपेयर, अगर आप कंपेयर करोगे पावर बीआई के एक्सेल के बीच में, एक छोटा सा विजुअल बनाने के लिए, उसको ब्यूटीफाई करने के लिए, उसको फॉर्मेटिंग करने के लिए, विच वन इज इजी? और और भी भी और भी easy। ओके, पावर बीआई इज मच 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 इजियर देन एक्सेल। Yes, sir. सर ज्यादा यूज को क्या, कौन सा टूल्स होता है, पावर पावर बीआई, बीआई एक्सेल का कंपैरिजन ही नहीं है। ठीक है, पावर बीआई अगर डाटा अगर एनालिसिस? देर आर 10 अपॉर्चुनिटीज, 9.5 will be Power BI, only half will be जी, Excel। जी सर। ठीक है, पावर BI यू कैनॉट इमेजिन इसमें कितना अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है, बट यू नीड टू यस सर। लर्न इन सच ए वे, यू नीड टू बी जी सर। एक्सपर्ट इन। ठीक है, आई विल टीच यू एवरीथिंग रिलेटेड टू पावर बीआई, बहुत ही स्क्रैच से अभी मैंने जैसे समझाया, वेदर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। और यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस होने से अच्छी बात है, ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग वेंट परफेक्ट। ओके, देयर कुड बी सिचुएशन जहाँ पे मैंने थोड़ा फास्ट गया या फिर स्लो गया या फिर अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, एंड और यू नीड टू टेल मी, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ द थिंग्स, जितना हो सकता है मेरे से, आई एम ट्राइंग टू डू दैट। तो यस सर। इन टूडे सेशन यू अंडरस्टूड हाउ टू, मतलब कैसे इंस्टॉल करते हैं, इंटरफेस वाइज जी सर। इसको क्या बुलाते हैं,
डेटा कहीं Yes, पे sir. भी हो, कैसे हम इंपोर्ट कर सकते हैं, और एक छोटा सा विजुअल कैसे बनाते हैं, फैक्ट मतलब क्या है, डायमेंशन मतलब क्या है, फील्ड लेवल्स मतलब क्या है, कौन सा कहाँ पे डालना है, और उसको कैसे फॉर्मेट करना है। दिस थिंग्स आर क्लियर, Yes, Yes, sir. Yes, Yes, sir. राइट। बट आई गारंटी यू जब आप करोगे आपको इश्यू आएगा। ओके। yes, पावर बी Yes, एक guarantee. sir. ऐसा पावर बी एक ऐसा टूल है, देखने में एक अच्छा बॉलीवुड मूवी देखने की तरह लगेगा। जी सर। हाँ It will look very simple when I am doing, but when you are doing, you will face the challenges. वो challenges कब खत्म होंगे? When you do multiple times. ओके सर। ठीक है, आप इसी को 10 बार करोगे, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग हो जाएगा। सर मैंने Okay. एक्सेल में भी एक प्रोजेक्ट बनाया था, मतलब बना रहा था कल। तो मतलब काफी चीजें खुद से पता चली ना, जैसे आपने ये इस पे अभी हाँ, वो करने से ही होगा। वही 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 चीज। ठीक है, वो करने से ही होगा। अब हम सिर्फ वीडियो देखने से, क्लास अटेंड करने से यू विल नॉट गेन एनी नॉलेज, दैट इज फॉर श्योर। सर वो कहता है ना प्रैक्टिस में परफेक्ट। हाँ, पावर बी सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है। ठीक है, पावर बी में सिर्फ प्रैक्टिस है, यहाँ पे कुछ हम रॉकेट साइंस नहीं कर रहे हैं। सिर्फ डैक्स के जगह पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी कहीं पे भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ हार्डवर्क प्रैक्टिस ही चाहिए। ठीक है, Okay, sir. यस सर। ओके देन लेट्स क्लोज फॉर टुडे। एंड आप डाउनलोड डाउनलोड करके ट्राई टू क्रिएट दिस विजुअल। ओके, जी सर, बस ये थैंक यू विजुअल सर। बना। सर मैं कर दी हूँ, अभी आप बोलते बोलते मैं कर ली। हाँ, वेरी सर गुड, बट आई वुड सर मैं रिकमेंड कि डू इट मल्टीपल टाइम्स। यस यस सर। सर। ओके, मे बी कुछ और रिक्वायरमेंट ले लो, यहाँ पे कैटेगरी वाइज सेल्स की जगह सब कैटेगरी वाइज सेल्स ले लो, सेगमेंट बाय जी सेल्स सर। ले लो, जी। सेगमेंट बाय प्रॉफिट ले लो। वट एवर यू वॉन्ट टू डू, ट्राई टू डू दैट। एनी वे टुमारो आई विल कम, नेक्स्ट डे आई विल गो स्टेप बाय स्टेप। मैं एट ए टाइम एडवांस लेवल में नहीं जाऊंगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा। मुझे आप फॉलो करो, उसको आप जब लगता है ये सिंपल है, हो गया, कुछ और करने की कोशिश करो। ओके सर। यस जी सर। सर। ओके, पहले मैंने जो क्लास में दिखा उसको तो कंपलसरी करना है, उसके बाद आप खुद एक्सप्लोर करो। जी सर। ओके। ओके, यस यस सर। सर। right, this will be very easy.